Hello everyone, this is Hina Malhotra. So today we are going to start the new chapter that is polynomials. This is class 9 chapter 2 polynomials, but this topic is useful for your DAV 8 class polynomials chapter and 9th class, 10th class. So all this introduction part will be useful for all the classes, but I'll take the selected questions, but before that I'll explain all the topics of all the introduction part of polynomials, right? So beta, what do you understand by the name of this chapter and what is polynomial? Basically you have studied in your earlier classes about monomial, binomial, trinomial. तो monomial आप बोलते थे मैम, it would be your single term. Binomial means by का मतलब क्या होता है two. So it means your two terms. Terms क्या होती हैं? अब जैसे मैं आपको बोलूँ introduction में first of all if I am talking about the monomial, so it means I am taking just one term, let it be 2x. तो ये क्या है आपका monomial. अब ज़रूरी नहीं है उसमें वेरिएबल हो, इट कैन बी एनीथिंग. यहाँ पे हमारा 2 है तो भी हमारा ये कंसिडर होगा एज अ मोनोमियल. अगर मैं बोलूँ यहाँ पे 2x², सो इट मीन्स इट विल बी कंसिडर एज अ मोनोमियल. Now what is binomial? Binomial में if I am adding just one more term, let it be x here. Now these two are unlike terms. Why? Because first है आपकी 2x² and the second one is x. If it would be your like terms, so अगर suppose if I am taking this is x², so 2x² plus x² it would be your 3x². जो ये binomial हमने consider किया था वो हमारा क्या बन जाएगा? It would be your monomial. So it means जब आपकी इन सारी terms की बात करी जाती है monomial की, binomial की या trinomial की, so sorry, monomial में how many terms are there? One term. Binomial में let it be if I am taking let it be 3y. ठीक है. Now here I am taking two variables. First is x and the second one is y. So it means 2x² plus x². It would be 3x² and 3y. So it means now we can consider it as a binomial, right? So what is polynomial, right? In which we are having one or more than one term. So it means हमारा क्या हो सकता है polynomial में, या तो हम one term ले या उससे ज़्यादा terms ले. वो monomial जो है वो भी आपका polynomial होता है, binomial जो है वो भी आपका polynomial होता है. बहुत सारे students कहते हैं मैम monomial, binomial, trinomial के बाद polynomial आता है. No, polynomial में हमारी या तो one term होती है या तो more than one terms. तो ये सारा मतलब ये सारी जो terms है these are the parts of a polynomial. ठीक है. Now the next one is if I am talking about the first question, this is which of the following expressions are polynomial in one variable. So it means we will study this chapter only in one variable. Now what is variable? जो terms आपकी आएंगी बेटा I will explain that topic. ठीक है. Now variable is basically unknown alphabet जो आपका होता है unknown variable in which we are not having any fixed value. फॉर एग्जाम्पल एक्स वाई जेड इट कैन टेक एनी ऑफ द वैल्यू. इसमें हमारी कोई वैल्यू फिक्स नहीं होती है, राइट? अब इसमें हमारे पास अगर हमें क्वेश्चन में बताना है कि कौन सा आपका पॉलिनॉमियल वन वेरिएबल है या नहीं, तो सबसे पहले आपको चेक करना है वन वेरिएबल. और पॉलिनॉमियल में एक चीज़ होती है जो आप सबको ध्यान रखनी है. बेसिकली इफ़ द पावर ऑफ अ वेरिएबल इज़ अ होल नंबर, सबसे अच्छी आपके पास जो ट्रिक होती है कि पॉलिनॉमियल है या नहीं, तो इट मीन्स डिग्री ऑफ अ वेरिएबल. डिग्री मतलब क्या होती है? द पावर. और वी कैन से दैट जस्ट अ पावर ऑफ अ वेरिएबल. पावर डिग्री आपका हाईएस्ट वर्ड होता है, हाईएस्ट पावर होता है. बट मैं सिर्फ आपके क्या लिख रही हूँ लाइन, पावर ऑफ अ वेरिएबल शुड बी अ होल नंबर. नाउ होल नंबर का कॉन्सेप्ट आपको मैंने फर्स्ट क्लास में समझा रखा है, क्लास 9 के फर्स्ट सेशन में. सो आप वहाँ जाके समझेंगे. ठीक है. पावर ऑफ अ वेरिएबल शुड बी अ होल नंबर, शुड बी अ होल नंबर. ठीक है. सो व्हाट डज इट मीन? द फर्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ देखो आपके पास 4x² - 3x + 7.
तो फर्स्ट में आपके पास जो वेरिएबल है यहाँ पे पूरी पूरी पॉलिनॉमियल में जो वेरिएबल है वो क्या है x। अब इसमें पावर क्या है यहाँ पे 2, सेकेंड वाले में पावर क्या है 1, और आपके होल नंबर्स क्या होते हैं विच स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड गोज टू इन्फिनिटी। सो व्हाट डज इट मीन, येस दिस इज अ पॉलिनॉमियल। अब सेकेंड वाले में आप कहोगे मैम यहाँ रूट वाला वर्ड आ रहा है, तो बेटा ये रूट जो है वो नंबर पे है, आपका वेरिएबल की बात करी मैंने। ये जो डेफिनेशन लिखी है वो पॉलिनॉमियल की जो आपकी स्टेटमेंट लिखी है वो मैंने क्या लिखा है, पावर ऑफ अ वेरिएबल। बहुत सारे बच्चों को क्या कन्फ्यूजन होती है कि यहाँ पे आपके पास जो लिखा हुआ है वो वेरिएबल की पावर जो है वो क्या है, वो होल नंबर है। अगर वो कांस्टेंट अब अगर आपका रूट में लिखा है या 1/2 लिखा है तो डजंट मैटर, राइट। तो व्हाट डज इट मीन, वाई स्क्वायर, वेरिएबल क्या है यहाँ पे y, सिंगल वेरिएबल है, 1 वेरिएबल है, पावर क्या है 2 प्लस √2, तो इट मीन्स √2 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, येस दिस इज अ पॉलिनॉमियल। नाउ इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द थर्ड पार्ट में आपको क्या करना है बेटा, 3 √t। अब t की पावर जो होगी अगर मैं इसको लिखूं तो 3t⁻1/2 प्लस t√2, इस √2 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट अगर आप ये फर्स्ट वाला देखो t की पावर 1/2, सो इट मीन्स दिस इज नॉट अ होल नंबर, सो व्हाट डज इट मीन, दिस इज नॉट अ पॉलिनॉमियल। समझ आया आपको। फोर्थ और फिफ्थ पार्ट आप खुद चेक करेंगे क्या ये क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है। चलो अब आंसर नंबर 2 में हमारा क्या है, राइट द कोफिशिएंट्स। अब मैं आपको कोफिशिएंट्स का टॉपिक समझाऊंगी। For example, I am taking any of the polynomial. Let it be, I am taking just one variable because आपका पूरा चैप्टर किस पे बेस्ड है, वन वेरिएबल पे। सो 2x² माइनस 3x प्लस 5, ठीक है। सो इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट द कोफिशिएंट ऑफ x², तो x² का कोफिशिएंट जो है वो बेटा जो उसके आगे का नंबर लिखा हुआ है, x² के आगे का नंबर आपके पास क्या है, दैट इज 2। सो इट मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x² क्या हो जाएगा आपके पास 2, कोफिशिएंट ऑफ x² क्या हो जाएगा 2। इफ आई एम सेइंग व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x हियर, सो इट मीन्स इट वुड बी -3। वाई, बिकॉज हमारे पास एक जर्नल फॉर्म ऑफ अ पॉलिनॉमियल होता है, वो क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c। सो इट मीन्स एवरी नंबर इज इन द पॉजिटिव फॉर्म। सो अगर आपके पास कहीं भी नेगेटिव नंबर आ जाए तो आपका कोफिशिएंट जो होगा वो माइनस इंक्लूड करके होगा। सो व्हाट डज इट मीन, कोफिशिएंट ऑफ x क्या हो जाएगा आपके पास -3। समझ आया। चलो अब आते हैं क्वेश्चन पे, राइट द कोफिशिएंट ऑफ x²। सो इट मीन्स आपको हर क्वेश्चन में यहाँ पे किसका कोफिशिएंट बताना है, x²। फर्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इजी, यू कैन डू इट। सेकंड पार्ट, इसी में सेकंड पार्ट में आपके पास क्या बोल रखा है, x², बट उसके आगे माइनस है, तो व्हाट डज इट मीन, कोफिशिएंट ऑफ x² इज -1, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x², दैट इज π/2 एंड हियर देयर इज नो x², सो व्हाट डज इट मीन, 1 नहीं लेना। अगर आपके पास x² की टर्म नहीं है सो इट मीन्स कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 0, ठीक है। सो इट मीन्स नाउ यू कैन डू फर्स्ट एंड सेकेंड क्वेश्चन, ठीक है। चलो अब आ जाओ थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन में बच्चों को क्या प्रॉब्लम आती है, मैम 1 एग्जाम्पल लिखना है। बायनॉमियल क्या होता है 2, राइट, 2 टर्म्स होती है। अब डिग्री क्या बोल रही है, बोला है आपको 35। डिग्री का मतलब क्या होता है बेटा, हाईएस्ट पावर। सो एक बात बताओ, अगर मैं इस पूरे पॉलिनॉमियल की बात करूँ तो इसमें डिग्री क्या है, हाईएस्ट पावर क्या है, दैट इज 2। अगर मैं आपसे बोलूँ लेट इट बी 5x⁻7 माइनस 3x⁻9 प्लस 2, so what is the degree here, that is 9। so it means डिग्री क्या होती है आपकी, हाईएस्ट पावर ऑफ अ पॉलिनॉमियल, ठीक है, समझा। सो अगर आपको इस क्वेश्चन में लिखना है बेटा बायनॉमियल ऑफ डिग्री 35, तो आप कोई भी टर्म लिखो, जैसे x की पावर 35 प्लस लेट इट बी x, सिंपल, ठीक है। सो इट मीन्स यू कैन राइट डाउन एनी ऑफ द नंबर, बट उसमें आपको ध्यान रखना है डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर। सो इट मीन्स x⁻35 प्लस x, ये आपके पास क्या हो जाएगा,
एग्जाम्पल ऑफ अ बाइनॉमियल ऑफ डिग्री 35। मोनोमियल का आप खुद बताएंगे, आप कमेंट बॉक्स में आप खुद मुझे इसका आंसर दोगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट इज राइट द डिग्री। आई गेस मैंने ये टॉपिक अब आपको समझा दिया। आंसर नंबर 4 में क्या बोल रहा है, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनॉमियल्स। तो डिग्री का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल। सो फर्स्ट क्वेश्चन में आपके पास हाईएस्ट पावर क्या है, दैट इज 3। ओके, अब फोर्थ पार्ट में बच्चों को प्रॉब्लम आएगी, मैम इसमें तो कोई पावर ही, इसमें कोई वेरिएबल ही नहीं है। तो बेटा इफ देयर इज नो वेरिएबल सो इट मीन्स वी कैन कंसिडर 3x रेज टू पावर 0। वाई, बिकॉज x रेज टू पावर 0 क्या होता है आपका, एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। सो इट मीन्स इसमें आपके पास डिग्री क्या होगी, 0, ठीक है। ओके, द लास्ट क्वेश्चन इज very important. If you need to classify that which is your linear polynomial, quadratic polynomial and cubic polynomial. So एक बात याद रखना बेटा, अगर मैं आपसे बोल रही हूँ linear, so it means इसमें आपके पास highest power और we can use the word degree, ये क्या होती है आपके पास 1, ठीक है। If I am talking about quadratic, इसमें क्या हो जाएगा, हाईएस्ट पावर दैट इज 2। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट क्यूबिक तो ये क्या हो जाएगी, 3, ठीक है। इसके बाद और भी होता है, बाई क्वाड्रेटिक भी होता है जिसमें 4 होता है, बट आपके सिलेबस में आपको कहाँ तक करना है, टिल क्यूबिक पॉलिनॉमियल। सो आपको ये जज करना है, आपको ये क्लासीफाई करना है कि कौन सा आपके पास लीनियर पॉलिनॉमियल है। आपको हाईएस्ट देखना है, आपको ये नहीं देखना, जैसे देखो इसमें x² + x है तो इसमें हाईएस्ट क्या है, 2। सो इट मीन्स दिस इज योर क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, ठीक है। दिस इज जस्ट अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन, वेट, this is just a brief introduction of this topic, so just do all the questions by your own. If there will be any doubt, you can see this video again if there is any doubt, so please let me ask in the next class or in the comment box. Okay, chalo, bye bye, take care, have a nice day, bye.